Hello, good morning dear students. This is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazaar, Gorakhpur. Once again, I welcome you to online classes. Students, in the series of revision, today I am going to explain true false of chapter first. And students, this is very important for your upcoming examinations. Yesterday I have explained filling the blanks. That is also very important. Students, in these holidays you have to learn daily at your home. Students, अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया एग्जाम्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप जो है तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा से अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं. If you want to gain more and more marks, then you have to learn daily. Okay? Here I have mentioned some questions. I will explain this and I will also explain related topic that will become in these statements. Okay? So let us start, students. Here question number first is, a program is a set of instruction. As you all know, students, a set of instruction is called program or software. Clear? A set of instruction is called software or program. स्टेटमेंट सीधे सीधे क्वेश्चन वही दे दिया है. क्वेश्चन कह रहा है कि a program is a set of instruction. This is true or false. हमें पता है a set of instruction is called program. Okay, so due to this reason, student, this statement is true. Okay, this statement is true. As you all know, student, the process of developing set of instruction in a computer language is called programming. Okay, now come to the question number 2. Look at the question number 2. Question number 2 is, the development of computer language is classified into two categories. Tell me, students, in how many generations computer language is classified? Computer language is classified into 5 categories. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, और कंप्यूटर लैंग्वेज के भी 5 जनरेशन. ठीक है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, दैट शॉर्ट फॉर्म इज फर्स्ट जीएल. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, दैट शॉर्ट फॉर्म इज सेकेंड जीएल. एंड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दैट शॉर्ट फॉर्म इज थर्ड जीएलएस. एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, दैट शॉर्ट फॉर्म इज फोर्थ जीएलएस. एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, that is short form is fifth GLS. But the question is, the development of computer languages is classified into 2 categories. Tell me, student, this statement is true or false? Yes, you will say this is false statement. Okay, because we know there are 5 generations of computer languages. कंप्यूटर लैंग्वेज के जो है 5 जनरेशन है. ठीक है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स instead 0 and 1. Okay, the question is asking, assembly language consists of binary numbers 0 and 1. As you all know, students, second generation language is also known as assembly language. Second generation language is also known as assembly language, or assembly language is also known as mnemonic code.
प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को ही हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज को ही हम लोग जो है मैनमोनिक कोड कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स 0 and 1। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मैनमोनिक कोड। मैनमोनिक कोड क्या होता है? जो भी हमारा वर्ड होता है उसका फर्स्ट 3 लेटर्स, जैसे मान लीजिए एडिशन है, ठीक है, एडिशन, ठीक है, तो एडिशन में जो ये फर्स्ट 3 लेटर हैं, ठीक है, यही इसका मैनमोनिक कोड होता है ऐड। इसी तरह सबट्रैक्शन में जो फर्स्ट 3 लेटर हैं SUB, वो आपका मैनमोनिक कोड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट 3 लेटर जो MUL है वो आपका मैनमोनिक कोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिवीजन में जो फर्स्ट 3 लेटर है DIV, वो आपका मैनमोनिक कोड कहलाएगा, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेज है दैट इज आल्सो नोन एज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम लोग मैनमोनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट मैनमोनिक कोड, ठीक है। मैनमोनिक कोड मैंने बता दिया क्या होता है। जैसे एडिशन वर्ड है तो एडिशन के जो फर्स्ट 3 लेटर होते हैं उसको मैनमोनिक कोड बोलते हैं। सबट्रैक्शन के जो फर्स्ट 3 लेटर है उसको मैनमोनिक कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है उसमें मैनमोनिक कोड का यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज मशीन लैंग्वेज यूजेज सिंपल इंग्लिश वर्ड एंड फ्राज। डियर स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज बोलते हैं उसी को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ कह रहा है कि जो मशीन लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश वर्ड एंड फ्राज का यूज किया जाता था, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मशीन लैंग्वेज में 0 and 1 का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता था, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज ही आपका बाइनरी लैंग्वेज है, दैट इज 0 and 1। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is the ultimate aim of 5GLS is to make computer behave, think and let me see what is the question. There is some mistakes. Yes, here this is spelling error. रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्ट होगा, ओके। द अल्टीमेट एम ऑफ 5GLS इज टू मेक कंप्यूटर बिहेव, थिंक एंड रिएक्ट एज ह्यूमंस। यस स्टूडेंट्स, जो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो है खुद की सोचने की क्षमता है, रिएक्ट करने की क्षमता है और वो ह्यूमंस की तरह है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। वंस अगेन वेट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ यू कैन सी द होल क्वेश्चन। Question number 5 is the ultimate aim of 5GL is to make computer behave, think and react as humans. Yes student, this statement is true. 5th generation का जो हमारा कंप्यूटर है वो इंसान की तरह सोच सकता है, रिएक्ट कर सकता है। That is totally based on artificial intelligence. Clear everyone? Now students, I have already explained pick the correct answer and fill in the blanks in my previous video. You have to learn that. That is very important for your upcoming examinations. Clear? So now
look at the question number first once again. Question number first is, a program is a set of instruction. Yes student, this statement is true. A set of instruction is called program. A set of instruction is called software. Okay. Second is, the development of computer language is classified into 2 categories. ये देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरीज दिया हुआ है, ठीक है। जो कंप्यूटर जनरेशन के लैंग्वेज है वो 5 कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इस वजह से ये जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ होगा ये फॉल्स होगा। कभी कभी जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और आंसर जो है फॉल्स करके चले आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ क्वेश्चन? सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली फर्स्ट। इफ आई हैव गिवन हियर 5 देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। एक वर्ड मैं चेंज करूंगा, आंसर जो है चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको अच्छा खासा ध्यान देना है, क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आप बेहतर ढंग से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स 0 and 1। अब यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया, असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मैनमोनिक कोड, अगर हम बाइनरी नंबर्स की जगह पे यहाँ मैनमोनिक कोड राइट कर देंगे तो ये आंसर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लर्न करना है कि अगर क्वेश्चन को चेंज भी किया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सकें। लाइक अ पैरेट यू डोंट हैव टू लर्न। आपको एक तोते की तरह याद नहीं करना है, आपको समझना है, क्वेश्चन को समझ के उसको पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। And question number 5, the ultimate aim of 5GLS is to be make computer behave, think and react as humans. Yes student, this statement is true because 5th generation computer can think by yourself and react like a humans. Clear? Now students, the next questions I will explain in my next video. Till then students, goodbye and thank you for watching my videos. Bye bye everyone.